দুয়ারে সরকার যা আজ থেকে শুরু হয়েছে এবং জানুয়ারি মাস জুড়ে চলবে। ইতিমধ্যেই প্রথম দিনেই রাজ্যের মন্ত্রীদের আমরা দেখলাম গড়ফায়, দেখলাম বালিগঞ্জে। সেক্ষেত্রে তৃণমূল সভাপতিরা তারা কবে থেকে ময়দানে নামছে, কি জানা যাচ্ছে এই বিষয়ে আরো একটু বিস্তারিত আমরা জেনে নেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর কমলিকা সেনগুপ্ত। কমলিকা, আজকে আমরা মন্ত্রীদেরকে দেখলাম মাঠে নামতে, তাহলে ময়দানে কবে থেকে তৃণমূল সভাপতিরা? দেখো, আগামী কাল থেকে কালকে গোটা দিন তৃণমূলের গোটা রাজ্যের যারা সভাপতি রয়েছে তারা সাধারণ মানুষের কাছে দুয়ারে সরকার নিয়ে পৌঁছবেন। কালকে থেকেই তারা সাংবাদিক বৈঠক করবেন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে যাবেন। থেকেই তারা ক্যাম্পে যাচ্ছেন। কাল থেকে তারা সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফ থেকে জানিয়ে দেবেন যে কোথায় কোথায় ক্যাম্প হচ্ছে, কোথায় কোথায় তারা সুবিধা পাবেন। এই গোটা বিষয়টা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকেও করা হচ্ছে এবং সমস্ত সভাপতিরা, জেলা সভাপতিরা আগামীকাল গোটা দিন সাংবাদিক বৈঠক করে মানুষকে জানাবে এবং প্রত্যেকটা ক্যাম্পে তারা নিজেরা গিয়েও ভিজিট করবে। ধন্যবাদ কমলিকা। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর কমলিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে। যেমনটা জানালেন কমলিকা যে আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার থেকে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতিরা তারা এবার ময়দানে নেমে পড়বে দুয়ারে সরকারকে হাতিয়ার করে। আজ প্রথম দিন এবং আজকে আমরা যেমনটা দেখলাম সকালে যে গড়ফা থেকে শুরু করে বালিগঞ্জে মন্ত্রীদেরকে আমরা দেখলাম তারা পৌঁছে যান দুয়ারে সরকার নিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে ঠিক কি কি সুযোগ সুবিধা তারা পাবে, এবং আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিরা। তারা ঠিক বোঝাবেন যে কেন দুয়ারে সরকার, কি কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তারা। তা নিয়ে এবার দুয়ারে সরকার নিয়ে আগামীকাল বুধবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিরা তারা ময়দানে নামছেন। আর এবার নজর রাখতে হবে রাজধানীতে দিল্লিতে, কারণ কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে আজ বৈঠক রয়েছে। বিকেল বা দুপুর 3টে নাগাদ বৈঠক রয়েছে। 3টে নাগাদ যে বৈঠক, সেই বৈঠক থেকে কি সমাধান বেরোবে? কারণ কেন্দ্র নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছে, অপরদিকে বিক্ষোভকারী যারা কৃষকরা রয়েছে তারাও নিজেদের দাবিতে অনড় যে নয়া কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। অপরদিকে কেন্দ্র ভাবছে যে তারা যে নয়া কৃষি আইন এনেছে তা কৃষকদের সুবিধার জন্য, তাতে লাভবান হবেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে আজ 3টে নাগাদ বৈঠক বিজ্ঞান ভবনে। কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার তিনি এই বৈঠক ডেকেছেন। 32টি কৃষক সংগঠনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, যদিও 500-এরও বেশি কৃষক সংগঠন এই বৈঠকে রয়েছে। আজকের এই বৈঠকে কারা কারা যান সেই দিকে অবশ্যই নজর রাখছি আমরা, এবং আজকের এই বৈঠক নিয়ে ঠিক কি কি ভাবছেন কৃষকরা আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि रवि मिश्रा। रवि जी, पहले तो जानना चाहेंगे आज दोपहर 3 बजे जो मीटिंग है, क्या लग रहा है कुछ नतीजा निकल के आएगा मीटिंग से? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर 3 बजे आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कृषि मंत्री और किसानों के बीच। मैं इस वक्त बुरारी ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये सभी किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि आज उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी मांगे हैं, वो पूरी हो जाएंगी। साफ तौर पर ये किसान काफ़ी दिनों से सड़कों पर हैं और आपको बता दूं कि आज किसान आंदोलन का 6वां दिन है, 6th डे है, और इस उम्मीद में ये आज ही बैठे हैं कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है किसानों की, उन बैठक में आज इनके मुद्दे, इनकी जो मांगे रखी जाएंगी और वो जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे वो उम्मीद हल हो जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात होती है और उस दौरान काफ़ी चर्चा होती है कि साफ तौर पे केंद्र सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए और किसी न किसी तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों के पास पूरा राशन है, पूरा खाना पीने का सामान है और ये चाहते हैं कि अपने मुद्दों को आज रखेंगे। क्या लगता है कि इस बैठक में आपके मुद्दे सुलझ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी बैठक हुई थी? आज की बैठक में कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, आज की मीटिंग में सरकार से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। सरकार पहले भी 2-3 बार मीटिंग कर चुकी है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ है। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को पहले से ही पता है कि इनके जो कानून आए हैं, खेती अध्यादेश, जो कृषि अध्यादेश आए हैं, उसका क्या नुकसान है किसानों को। इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बीच मौजूद हैं। 32 किसान संगठनों को निमंत्रण दिया है। इससे पहले जो नेता मिलने गए थे वही नेता आज मिलने जा रहे हैं। क्या लगता है आपकी मुद्दों को रखेंगे? आप जो सड़कों पर बैठे हैं 6 दिन से, घर वापस जाएंगे? आपके भी बीवी बच्चे, परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कमेटी हमारी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है किसान जथेबंदियों की,
वो ही बहुत अच्छे तरीके से, वो पिछली मीटिंगों में भी किसान जथेबंदियों के जो नुमाइंदे गए थे, उन्होंने मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स जो सभी वहाँ पे थे, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया। जो हमारे किसान जो संगठनों के आगू हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने बात रखी, किसी को उसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात है हमारी बीवी बच्चों की। जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, किसान के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, तो बीवी बच्चे, ये तो आर पार की लड़ाई है, हमारी आखिरी लड़ाई है जी। রবি জি, আমাদের সাথে বনে রইয়ে, मतलब বোঝাই যাচ্ছে যে নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন কৃষকরা। সেক্ষেত্রে আজকে 3টে নাগাদ যে বৈঠক রয়েছে, সেই বৈঠক নিয়ে কি বলেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, তার বক্তব্য একবার আপনাদেরকে শোনাবো। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछले बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কৃষক নেতা अफ्तर सिंह রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो 3 बजे मीटिंग है, आप लोग जा रहे हो मीटिंग में? देखिए मैडम, अभी हमारे लोगों की बैठक चल रही है सभी संगठनों की। इसमें जब निमंत्रण भेजा गया, सिर्फ पंजाब के किसानों को भेजा गया है। हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कोई निमंत्रण नहीं है। जब सभी संगठनों को निमंत्रण सरकार से आएगा तो जब बैठक में जा सकता है। अभी हमारे सभी पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की बैठक चल रही है कुंडली बॉर्डर पर। तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं भी क्या सरकार से वहाँ बात करनी चाहिए या सरकार को और दबाव बनाए, सरकार से बात करें, सभी संगठनों को सरकार बुलाए। तो भी उसके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब भी 1 बजे तक क्लियर हो पाएगा कि हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी एक बात बोलिए, कुछ संगठन तो जा रही है आज मीटिंग में? नहीं, अभी सिर्फ जो निमंत्रण सरकार की ओर से, वो 32 संगठनों को निमंत्रण है, जो सभी संगठन पंजाब प्रांत के हैं। बाकी किसी प्रांत के संगठन को कोई निमंत्रण नहीं है सरकार की ओर से। तो ये भी एक सरकार की चाल हो सकती है, डिवाइड एंड रूल, हरियाणा के किसानों को अलग करना और पंजाब के किसानों को अलग करना, ये सरकार की एक सोची समझी चाल हो सकती है। तो हम तो यही करेंगे सरकार से, जब तक हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा भी बराबर का आंदोलन कर रहा है, प्रदेश भी। हरियाणा के जो 18 संगठन है, जिसका मेरा संगठन भारतीय किसान यूनियन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अतर सिंह संधू है नाम मेरा। तो हमारे संगठन को और बाकी 18 संगठनों को कोई निमंत्रण सरकार की ओर से अभी नहीं मिला है। तो बगैर निमंत्रण के तो नहीं जा सकता ना जी। इसी बारे में तो एक पक्ष जाएगा, एक पक्ष नहीं जाएगा, तो कहीं यूनिटी में इसका इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट होगा। निश्चित सरकार की मंशा है। दोनों प्रांतों का जो संगठन, उनको अलग थलग करने की सरकार की मंशा है। क्योंकि सरकार तो पहले ही कह चुके, जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तो किसान कांग्रेस के लोग हैं। तो ये सरकार की मंशा है कि दोनों प्रांत के किसानों को अलग अलग करना, ये सरकार की सोची समझी चाल हो सकती है। मेरा ये मानना है कि देश का किसी भी प्रांत का किसान हो, चाहे हरियाणा का, पंजाब का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, राजस्थान का, चाहे किसी प्रांत का, सब किसान है। सब किसानों को एक मान करके सरकार को चलना चाहिए। और जो संगठन धरातल पे काम कर रहे हैं, जो संगठन आंदोलन में काम कर रहे हैं, उनको बुला करके सरकार को उनकी इच्छा के मुताबिक जो किसान चाहते हैं उनके मुताबिक बात करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो कोरोना काल में मार्च में जो किसानों की फसल आई थी गेहूं की, जो देश के किसानों ने जो कोरोना काल में काम किया, वो काबिले तारीफ है। देश को भूखे मरने से बचाया अन्नदाता ने। अन्नदाता की इतनी बेकदरी कभी सालों में नहीं हुई, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने किसानों को मारने का काम किया। जी बिल्कुल, शुक्रिया। हमारे संगे रয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি रवि। मिस्टर रवि जी, एक बात बोलिए, अक्टूबर नवंबर में बैठक हुआ था, उसके बाद आज एक मीटिंग है, क्या लग रहा है, कितना उम्मीद है आज मीटिंग से? देखिए, साफ तौर पे किसानों की बात अगर माने तो इनको लगता है कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि इससे पहले भी बैठक हुई थी, जो कृषि मंत्रालय की तरफ से, मंत्री की तरफ से इन्हें समझाने की कोशिश की थी, मगर इनका साफ तौर पे कहना है इनको समझना कुछ नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं, ये चाहते हैं ये कानून को वापस लिया जाए। अगर कानून वापस नहीं लिया जाता तो ये वापस नहीं जाएंगे। आज 3 बजे जो बैठक है, उस बैठक पे किसानों की नज़र, निगाहें, उम्मीद पूरी बनी हुई हैं और कुछ लोगों को निमंत्रण मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। पंजाब के किसानों को बुलाया गया है, हरियाणा के किसान जो लीडर्स हैं वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान के कुछ लीडर्स पहुँच रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को थोड़ा डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक राजनीति आपस में भी हो रही है? ये जी सरकारां ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਵਾਂਟ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ,
सारे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे है, जो फैसला होगा इकट्ठे होके करनगे। ये वंडन की कोशिश तो हर सियासी पार्टी करती रही है, वंड के तो सानू राज ते बैठा है, पर यदि ये इस वेले की कोशिश नाकाम होएगी, कदे कामयाब नहीं होगी। असी वो तिन्ने बिल वापस कराने आ, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने रल के कराने आ, करा के रवांगे। कदे भी यदि जी कुछ कहते तकलीफ आऊ, सानू जिन्नियां तकलीफां आईयां दिल्ली नूं तां कुछ भी नहीं आई। मोदी सरकार नूं इहनूं पुछण वाला बंदा बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर रवि किसानों जी। का कहना है कि वो यहाँ से वापस नहीं आने वाले, वो यहाँ डटे रहेंगे जब तक उनके मुद्दे, उनकी मांगे पूरी नहीं होती। बिल्कुल जी শুক্রিয়া। অর্থাৎ কৃষকরা তারা নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছে, তারা যে দাবি জানাচ্ছে তা যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে তারা কিন্তু এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন कृषक नेता प्रेम सिंह गहलट। प्रेम जी, आज 3 बजे मीटिंग में आप लोग जा रहे हो? आज मीटिंग में आप लोग जा रहे हो प्रेम जी? हेलो, हाँ, सुनने में आ रहा है? आ रहा है जी, आवाज आ आज मीटिंग में आप लोग जा रहे हो 3 बजे? रही है। जी जाएंगे। जी, हरियाणा के कृषक नेता जो है, फार्मर नेता, वो तो नहीं जा रहे, तो इसमें कौन नहीं जा रहे? हरियाणा का एक नेता है अत्तर सिंह संधू, हमने बात किया है, उनका कहना है जो नहीं जाएंगे। देखिए वो उसमें नहीं है, उस मीटिंग में। आज जो है ये 32 किसान संगठन है, इनका न्योता आया है। प्लस इसमें हमने ये कहा था कि जो और संयुक्त मोर्चा है उसके लोग जाएंगे। तो अभी ये देखना होगा कि वहाँ क्या रणनीति रहती है, तो वहाँ जाके ही पता लग पाएगा। जी, एक बात बोलिए, अत्तर सिंह का कहना है जो चुन के पंजाब का जो कृषक नेता है उनको इनविटेशन मिला है मीटिंग के लिए। नहीं, ये पूरे देश के लिए है, लेकिन कोई ये गवर्नमेंट की एक कोई बात हो सकती है कि इन्होंने केवल पंजाब के लोगों को संदेशा दिया, लेकिन है ये पूरे देश का आंदोलन। अगर आप देखेंगे इसमें यूपी का जो है बहुत हर घर से कोई बच्चा बूढ़ा सब आ गए हैं। हाँ, तो ये सभी लोग इसमें मौजूद हैं अभी। तो बाकी तो हम बाद में ही जाकर के देखेंगे वहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद ही बता पाएंगे पूरी बात। জি বিলকুল, শুক্রিয়া। আমরা কথা বলেছিলাম কৃষক নেতা হান্নান মোল্লার সঙ্গে, তিনি আবার বলছে সরকার চালাকি করছে, আলোচনার কোনো এজেন্ডাই নেই। শোনাবো তার বক্তব্য। আলোচনা হবে কি? আলোচনা কিসের উপর আলোচনা হবে? এ তো ছেলে মেয়ের বিয়ে ঠিক করতে যাচ্ছি না, এজেন্ডা কথা। তো এমএসপি করছে, মিথ্যে কথা। এমএসপির আলোচনা নয়, 3টে কালা কানুন, এটা নিয়ে আলোচনা হবে। এই যদি আলোচনায় এজেন্ডা না আসে, আমরা ওখানে গিয়ে কি করব? বিভেদ করার চেষ্টা আছে, ঠকাবার চেষ্টা রয়েছে, মিথ্যে কথা বলার লোককে যে বারে বারে মিথ্যে কথা বলছে সরকার, এইরকম চালাকির যখন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কেউ যাবে, কে আলোচনায় যাবে? যতক্ষণ না সরকারকে আমরা এই আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করব, এই আইন চলবে। কৃষক বিরোধীরা কৃষকদের মনে ভয় দেখাচ্ছে, গতকাল বারাণসীতে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। আজকে 3টের মিটিংয়ে আমাদের নজর তো থাকবেই, তবে কৃষকদের আন্দোলন প্রভাব ফেলছে সমাজের বিশিষ্টদের মধ্যে। ক্রীড়াবিদরা তারা পদক ফেরাচ্ছেন, পাশাপাশি যারা তারকারা রয়েছেন, সেলিব্রিটিরা যারা রয়েছেন, তারা টুইট করছেন একের পর এক। আমরা এই নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দীপালি। দীপালি, ক্রীড়াবিদরা তারাও তো পদক ফেরাচ্ছেন, ঠিক কি জানা যাচ্ছে এই নিয়ে? পায়েল, যেটা জানা যাচ্ছে কৃষকদের সমর্থনে যেভাবে কৃষকদের উপরে জল কামান দিয়ে পথ আটকানো হয়েছে এবং যেভাবে বিক্ষোভরত কৃষকদের আন্দোলন আটকানোর চেষ্টা করেছে পুলিশ, সেটা নিয়ে
ক্রীড়াবিদরা ক্ষুব্ধ এবং তার সমর্থনে, কৃষকদের সমর্থনে পদক ফেরাচ্ছেন অলিম্পিয়ান সহ 4 ক্রীড়াবিদ। তাদের মধ্যে পদ্ম পুরস্কার ফেরাচ্ছেন কুস্তিগির করতার সিং, জানা গেছে অর্জুন ফেরাচ্ছেন ভারতীয় হকি তারকা রাজবীর কাউর, অর্জুন ফেরাচ্ছেন বাস্কেটবল তারকা সজ্জন সিং চিমা, তারপর হকি অলিম্পিয়ান গুরমেল সিং ফেরাচ্ছেন। তাদের সঙ্গেও আরো অনেকে যোগ দেবেন। তারা রীতিমতন সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে 5ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষকদের ডেকে যদি কথা বলা না হয়, সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে তারপর তারা দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে পদক রেখে আসবেন। এছাড়াও বিভিন্ন সেলিব্রিটি, যারা ক্রিকেটার, সঙ্গীত শিল্পী থেকে শুরু করে অভিনেতা সোনু সুদ, কপিল শর্মা, গুরিন্দর চাড্ডা, এমনকি সিমি গরেওয়াল প্রত্যেকেই টুইট করেছেন। টুইট করে কৃষকদের পাশে থাকার কথাবার্তা দিয়েছেন। তাই ধন্যবাদ দীপালি। অর্থাৎ ক্রীড়াবিদরা তারা যেমন কৃষকদের পাশে, পাশাপাশি কৃষকদের পাশে সেলিব্রিটিরাও তারাও একের পর এক টুইট করেছেন। কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে কোথাও কি ঘরে বাইরে চাপের মুখে রয়েছে মোদী সরকার? কারণ কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় কৃষক সংগঠনগুলি। এই নিয়ে কোনো দর কষাকষিতে রাজি নয় তারা। কৃষি আইনের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই শিরোমণি আকালি দল এনডিএ ছাড়ে। এনডিএর আরেক শরিক দল রাজস্থানের রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টিও জানিয়েছে যে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় না বসলে এনডিএ থাকার বিষয়ে তারা পুনর্বিবেচনা করবেন। হরিয়ানায় বিজেপির শরিক দুষ্যন্ত চৌটালাও কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি করছে। হরিয়ানার পশুধন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সে রাজ্যের নির্দল বিধায়ক খাপ নেতা সোমবীর সাংওয়ান। न्यूज फ्लैश निवेदन করছে सफेद डिटर्जेंट पाउडर। बदलती दुनिया के लिए तैयार है सफेद एंटी जर्म पावर, जो आपके कपड़ों से कीटाणु हटाए। बदलती दुनिया तैयार है सफेद। स्ट्रॉन्ग माने जाना আছে মাইথন। স্ট্রং মানে মাইথন। নির্মল মহানগর সন্ধ্যে 6:30টায়। নাইবা হলো মহানগর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর। হলেই না হয় জেলা শহর। আমার গর্ব, আমার শহর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার গর্ব, আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর। এবার আপনার শহরের সব খবর আমার শহর, নিউজ 18 বাংলায়। যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর চর্চায়, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর মুখে মুখে, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর, যে খবর ট্রেন্ডিং, প্রাইম টাইম, প্রাইম নিউজ, প্রাইম টাইম at 18। আপনি যা চান সেটাই খবর, আপনি যেভাবে চান সেটাই খবর, খবরে আপনিই সব। নাকি 21-এ পরিবর্তন, তৃণমূল, বিজেপি নাকি জোট? নিউজ 18 বাংলায় 18 আনাই ভোট, প্রতিদিন সন্ধ্যে 6:30টায়। লক্ষ্য 21 রাজ্যে সংগঠন বাড়াতে তৎপর বিজেপি। রাজ্যে আরো কেন্দ্রীয় নেতা আসবেন। নির্বাচন যত এগোবে কেন্দ্রীয় নেতারা আসবেন। অন্যান্য রাজ্যে যারা সফল তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। এর আগে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রের 5 বিজেপি নেতা তারা রাজ্যে এসেছে, তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 5 জনের। এবার আরো নেতারা আসবেন। যত নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় নেতারা আসবেন। সংগঠনকে চাঙ্গা করতে তাদের উপরই ভরসা রাখছে গেরুয়া শিবির। আমরা এ নিয়ে কথা বলেছিলাম বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। তার বক্তব্য কি শুনব। যে 5 জন এসেছিলেন তারা নির্বাচনের প্রস্তুতির খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে স্টেপ কীরকম হবে সেটা কেন্দ্র পার্টি এটার উপরে ঠিক করবে। এবং আরও অনেকে ভিন্ন জায়গায় আসছেন যেখানে আমরা দুর্বল আছি, সেখানে কী করে জেতা যায়। আমাদের পার্টি নির্বাচনে সারা দেশে সাফল্য পেয়েছে। যারা এই ধরনের কাজে এক্সপার্ট আছেন তারা
বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে সেখানকার কর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য, সাজেশন দেওয়ার জন্য এসে থাকেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার লাভ আমরা উঠাই।